Hi everyone, welcome to Roots and Wings. So today I have someone very special with me, one of my favorite student, Bhuvi. And why am I saying that? Because I feel over the years I've seen her growth journey and how proudly I can say that, to become her teacher and how well I've seen her grown in her entire school life. So I would love all of you to welcome Bhuvi so that she can just come over here and share her beautiful journey with us, which can actually inspire hundreds of other students. So let's welcome Mhm. Bhuvi. Thank you. Thank you. Thank you so much, Bhuvi, for being here Thank you. as my first guest. And Thank you. Thank you so let's much. just start. So, how are you feeling today? I'm feeling good, pretty good. Like it's a Nice. nice day. Today. And can you tell us about yourself? What do you like to do? You are in which grade? Okay, so hello everyone. I am Bhuvi and I'm in class 12th from Queen Mary School, Malltown. And I like to do quilling, singing, cooking. Yeah, these are some of the activities that I enjoy doing all the time. Like I don't need a special occasion or special time. And my mind, don't need my mind to set कि ठीक है अब ये करते हैं. No, it's 24/7 I am available for all these things and I'm happy to do all these things. That's nice. Lovely to hear this that you're using your time wisely. It is really important in today's life where, majority of the students are really distracted. Mm. So, really good to know that side of yours. And if I would ask you, what is the best thing that describes you? Any three qualities that you have? Have you ever thought about it? Mm, uh, I think I am kind. Like in today's world, I think I am kind to people and I'm helpful. And thirdly, mm, I'm soft speaking. I think. Yes, yes. For I sure, I agree. I agree to that. I have seen you helping other students also, so that's a lovely quality. I feel Mm. every child should learn to help. That is a part of kindness. Very Yes. nice. Maybe let's just go back in time. Do you remember if I talk about those days, do you remember the time that you met me for the first time? And it's been how many years now that we know each other? It's been almost 4 years, I think. Yes, yes. मैं तो जानती थी आपको उससे पहले से स्कूल में बट आई नेवर टॉक टू यू लाइक बिफोर क्लास नाइन्थ तो नाइन्थ में आई मेट यू एंड इट वाज लाइक इट्स अबाउट 4 years. Okay. Can you also tell us when you met me for the first time, anything that you were struggling during that time in school life? Or was it all okay for you? Anything? Any No ma'am, experience that you would like to share? as it was class ninth and just after the lockdown I'd said so it was very difficult for me to join the school again. Like, not for me, I think for each and every one of us to join the school again and, to be in the people we knew before, but we hadn't talked from 2 years, 3 years, kind of. So it was very difficult. Firstly, the subject, if we talk about it, was French. And as I said, मेरा नहीं था उस टाइम फ्रेंच में इतना इंटरेस्ट ना. लाइक मेरे लिए ऐसा था फ्रेंच एंड हिंदी वर बोथ एट द सेम लेवल. सो आई थॉट कि ठीक है अभी मेहनत करनी है तो फ्रेंच पे करते हैं. सो द सब्जेक्ट वाज वेरी न्यू. सेकेंडली क्योंकि मेरे पे फ्रेंच थी इसलिए आई लॉस्ट माई फ्रेंड्स जो भी थे दे वर लाइक कि हिंदी लेते हैं एक साथ होंगे हम लोग एंड दैट वाज नॉट द एज लाइक वी वर नॉट matured you can say, like we are not even right now. बट ठीक है तब हम नहीं थे इतने कि हम इस चीज को ले पाते कि इट्स ओके सब्जेक्ट्स ही तो है. Hmm. 11th 12th में भी हमने उस चीज को लिया. पर तब ऐसा हो गया कि नहीं अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो वी आर नॉट फ्रेंड्स काइंड ऑफ. तो तब मेरे लिए ऐसा हो गया था कि नो फ्रेंड्स एंड द सब्जेक्ट वाज आल्सो नॉट माय फ्रेंड. लाइक मेनली मेरे को ऐसा लग रहा था साइंस हिंदी ये साइंस इंग्लिश एसएसटी वो हम करते आ रहे हैं तो फ्रेंच भी मेरे लिए न्यू सब्जेक्ट हो गया था.
और जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे वो मेरे लिए न्यू सब्जेक्ट हो गए थे। तो मेरे को दोनों को स्टडी करना था और दोनों को फ्रेंड बनाना था। तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल इजी नहीं था। तो मेरे को काफी ऐसा, लाइक मैं स्टडीज में भी ना फ्रेंड्स के चक्कर में नहीं, बट फ्रेंड्स के चक्कर में पीछे हो गई थी कि आई एम सिटिंग अलोन या फिर कुछ भी है। उसके बाद फिर जब आप मिले, आई थिंक ऐसा मेरे को 10 क्लासेस तक लगा होगा जब हम आए। और हम आपसे बात इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद तो फिर अभी देख लो। अभी दोनों फिर एंड तक तो फ्रेंच भी अच्छी हो गई थी और फ्रेंड्स भी अच्छे हो गए थे। तो हाँ, ये What do चीज you what do you think what helped you? Anything that connected us well and you were able to open up with me that maybe you were not getting that space anywhere else around. Were you able to connect with other students or your parents for that matter? Were you able to do that with them and share everything? Like I see kids these days, they're थी। not able to express well with their parents. हम्म। They have lot of distance. So were you able to connect with them? मैम, पेरेंट्स का के साथ भी कनेक्ट करने में देर वॉज नो नो सच इशू। Hmm. लाइक टचवुड आई हैव पेरेंट्स जो मुझे जज नहीं करते हैं किसी भी चीज पे। Very nice. इफ आई से कि मेरे से नहीं हो रहा है स्टडीज में, Hmm. इवन नाउ डेज इफ लाइक हो रही है, मेरे को पता है मेरे से हो जाएगा, बट एक वो नर्वसनेस रहती है। तो Hmm. इफ आई से कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो मेरी मदर एंड मेरे फादर दोनों आर लाइक इट्स ओके, तू पास हो जा। एंड आई ऑलवेज आस्क देम कि पास होने के लिए थोड़ी पढ़ाई कर रही हूँ मैं। वो तो हो जाऊंगी। तो वहां से भी मेरे को कभी प्रेशर नहीं मिला इतना कि अगर नहीं करोगे तो फिर लाइक जैसे आई सीन पेरेंट्स जो प्रेशर करते हैं। Yeah, just one question. Yeah, one हम्म। question from what you're sharing. You हाँ might be जी। having so many other friends. You're very हम्म। lucky that you're blessed with such parents. Do you हम्म। think it's the case with everybody around you? Do you think so? ना 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 ना, नो What मैम। what are the things that are happening with the kids these days? If you would like to express it in your own words, what do you think? मैम, लाइक नाउ सोशल मीडिया वी ऑल नो इज वेरी है ना, है। सो डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी है हमारे पास, जो हमें कंसंट्रेट नहीं करने दे रही। तो इस चक्कर में कितनों की अगर स्टडीज हो रही है ऊपर नीचे, लाइक आई डोंट थिंक अभी आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं ना, दे आर जजिंग देयर चाइल्ड, देयर ओन चाइल्ड, कि अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो आर चाइल्ड इज वीक इन स्टडीज, है ना। और उस चीज को किसी के भी सामने बोल देना विदाउट थिंकिंग कि उस पे क्या बीत रही होगी। आई थिंक हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले से ही हम जिनको जानते हैं हम सबसे ज्यादा उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं। और अगर वो ही कभी कभी ऐसा कर जाते हैं, लाइक इवन हमारी टीचर्स के सामने ये चीज बोलना कि ये तो पढ़ती ही नहीं है बिल्कुल, ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है, मतलब ठीक है आप अगर उनकी एडवाइस चाहते हो कि बच्चा क्या पता उनसे मानेगा, या हम लोग मानेंगे टीचर्स की बात से, इट इज ट्रू। बट हमेशा एक ही चीज पे फोकस करना कि ये पढ़ाई नहीं करती, पढ़ाई नहीं करती, आई थिंक कि ये तो सही नहीं है। कितने स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कितने ड्राइंग में अच्छे होते हैं, एंड अगर कोई एक लाइक स्टडीज में सही नहीं है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो किसी ना किसी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में या किसी में ना होंगे ही होंगे एक्सेल। और वो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। इवन कितनी बार मैंने देखा है कि वो टीचर्स भी इग्नोर कर देते हैं अगर एक स्पोर्ट्स में है। लाइक अगर हम देखें ना, डेली लाइफ में हमारी क्लास का जो एक बच्चा जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आता होगा ना, वो कहीं ना किसी फील्ड में लैग जरूर करेगा। अगर वो स्पोर्ट्स है, वो ड्राइंग है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, वो कम्युनिकेशन है, वो कोई भी फील्ड है, मतलब जो एक्टिविटीज कॉमन है काफी ज्यादा, उनमें वो कहीं ना कहीं पीछे रहेगा। और एक बच्चा जिसके मार्क्स नहीं आ रहे, आप सिर्फ उसी को यही बोली जा रहे हो कि मार्क्स नहीं आ रहे, पेरेंट्स भी उसी पे जज कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी उसी पे जज कर रहे हैं, टीचर्स भी उसी पे जज कर रहे हैं, बट उस पे क्या बीत रही है उसको नहीं, मतलब पेरेंट्स नहीं रियलाइज करते, एंड इवन बाकी भी नहीं करते। लेकिन आपने बोला कि आपको मतलब मेरे को क्या चेंज दिखा था 9th में, तो यही था कि आपने जो चीज की ना, आपने किसी को जज नहीं किया मार्क्स के ऊपर। लाइक मेरे भी फ्रेंच में स्टार्टिंग में कितने, आई थिंक 13 14 आउट ऑफ 25, तो उतने ही मार्क्स थे, दे वर नॉट सो गुड। बट आपने कभी भी इस चीज पे मेरे को जज नहीं किया कि नहीं, आई एम नॉट गोना हेल्प यू। या फिर एक वो होता है ना टीचर्स फेवरिज्म कभी कभी करते हैं, लाइक कुछ भी कह लो, इट इज देयर।
है ना। तो वो चीज मैंने देखी कि वो नहीं दिखी मुझे वहां पे। 9th 10th में अगर मेरी आपसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई है, तो आई जस्ट फील कि वो तभी हुई है कि आपने जज नहीं किया। इवन आपने, मैंने खुद सुना था कितनी बार, लाइक हम पीटीएम वगैरह पे आते, पेरेंट्स बैठे होते, तो आप यही बोल रहे होते थे कि इट्स ओके, मार्क्स नहीं आ रहे, बाकी देखो वो ड्राइंग में इतनी अच्छी है। और आपने सबसे पूछी थी कि आपकी फेवरेट एक्टिविटीज क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, उनको परफॉर्म करते हो नहीं करते। तो यही है जो हमें हमारे पेरेंट्स से भी चाहिए होता है। लाइक मेरे को तो टचवुड घर पे ये सब है। इफ आई से कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ, आई वॉन्ट टू डू आर्ट एंड क्राफ्ट, आई डोंट वांट टू स्टडी दैट मच, सो माई पेरेंट्स आर ओके कि ठीक है, अगर आपको करना है आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है करो, एक ग्रेजुएट कर लो अपना, ग्रेजुएशन की डिग्री, और उसके बाद उसको कंटिन्यू रखो। अगर मैं स्पोर्ट्स में जाऊं एंड आई एम सेइंग कि मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे स्पोर्ट्स में, डेफिनेटली फोकस एक जगह पे ही कर सकता है इंसान, कितना ही कर ले, टाइम तो 24 आवर्स ही है, तो उसमें से ही। तो वो चीज पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि सिर्फ मार्क्स ही सब नहीं होते हैं, और आपका बच्चा, आपका चाइल्ड जो भी है, वो सबसे ज्यादा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो उनका साथ दो। इंस्टेड उनको सबके सामने बोल देना कि नहीं कर रहे हो या कुछ है। तो ये मैंने कुछ पेरेंट्स में देखा है, आई एम नॉट सेइंग दे आर ऑल आर दिस काइंड ऑफ, बट हाँ मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं ये चीज है, मार्क्स के बेसिस पे करना या प्रेशराइज करना कि उनके, और कंपैरिजन सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स कर जाते हैं कि उसके देखे मार्क्स, उसके देखे मार्क्स, उसके देखे मार्क्स। अगर आप उनके मार्क्स देख रहे हो, तो जो क्वालिटी इनके अंदर है, आपके चाइल्ड के अंदर है, वो भी आप किसी से कंपेयर करके देखो, क्या पता आपको कंपटीशन में कोई भी ना मिल पाए, इतना अच्छा आपका वो चाइल्ड कर रहा हो। तो ये चीज है ये जो सब मुझे। आपको पहले से पता था? जब तक हमने बात नहीं करी, हमारे इतने सेशंस हुए, डू यू रिमेम्बर द नंबर ऑफ सेशंस दैट वी हैव इन्वेस्टेड, द नंबर ऑफ टाइम, number of hours we have invested in doing several activities on papers? Do you remember when when you as children used to express yourself through writing? Did that really हम्म। help you? What do you think? यस मैम, इट हैड लाइक हेल्प मी अ लॉट। क्योंकि जो चीज होती है ना, हम पहले आपसे कन्फ्रंट नहीं कर पाते। एंड क्योंकि मैं कह सकती हूँ लाइक आई एम एक्सट्रोवर्ट, तो मैं क्या पता बोल पा रही थी, लेकिन हमारी क्लास में कितने सारे ऐसे भी थे जो नहीं बोलते थे। तो मेरे को उन लोगों के लिए, अपने से ज्यादा उन लोगों के लिए उस चीज पे खुशी होती थी कि वो एटलीस्ट रिटन फॉर्म में आपको अपनी हर एक बात एक्सप्रेस तो कर पा रहे थे, हर एक बात क्या पता नहीं, बट जो वो किसी को नहीं कर पा रहे वो करते थे। लाइक अगर हम ऐसे थोड़ा बहुत कर ही लेते थे ना कि अच्छा क्या बताया फिर तुमने, तो वो यही बोल देते कि नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, कुछ ऐसी थी जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे, आज कर दी। तो ये चीज तो है कि रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो, अगर सामने से कोई आपकी तरह एक स्टेप फॉरवर्ड करे, तो एक इंट्रोवर्ट भी अपनी जितनी भी या जो भी चीज उनको प्रेशराइज कर रही है, कोई भी माइंड में बात है, तो वो उन लोगों ने लिखी थी, और उनके लिए काफी हेल्पफुल थी। लाइक आपने बाद में भी वो सब रीड करके खुद से ध्यान दिया था उस पे, तो हाँ जी। That's so nice. So wonderfully you've expressed everything. And there is also one more thing, Bhuvi, that I would like to ask you. What do you think? Parents do it deliberately, जान के करते हैं वो, या they're not even aware of today's trend because they're not learning anything extra. So how will they come to know? How am I able to talk about things, and how am I able to, pass on the things to you people? Because I have been learning about it since 3 4 years, about parenting, about life coaching and everything, so that I can share those insights, those activities with you that help you to express yourself. Do you really Yes. think that it's a time that they should start learning? और या अभी भी वही ट्रेंड है कि मतलब कौन सीखता है, या और I they're not think interested? they need to learn, दे नीड टू लर्न कि हाँ, लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक मेनी पेरेंट्स आर लिविंग इन दैट स्टीरियोटाइप यू कैन से, कि मार्क्स ही सब होते हैं, और बच्चा एक्टिव है तो ही सब होगा, बच्चा हमें आके हर एक बात खुद बोलेगा। तो वो चीज तो पेरेंट्स को सीखनी चाहिए कि अगर वो नहीं स्टेप ले पा रहे हैं, हम लोग नहीं स्टेप फॉरवर्ड कर पा रहे, तो आप हमारे लिए एक हाथ अपना आगे बढ़ाओ, और फिर हम क्या पता कर लें आगे, एंड करेंगे मेरे को जहां तक लगता है। तो पेरेंटिंग लर्न करनी इज काइंड ऑफ बीइंग अ नीड, आई थिंक फॉर पेरेंट्स नाउ, क्योंकि Exactly. हम, हाँ जी। And it's not about feeling, I feel offended. Learning happens every day. It यस shouldn't मैम, be like, parenting is done by chance. It should be done with choice, and everybody is learning. When we are learning, we're able to do better.
We also, I would like to ask you, what do you think? Anything that you can remember that you were not able to handle before, and now you're able to handle it well? Any setback if you come across? Because now I think you have learned a lot, uh, and you understand this thing that life is not always about yes. There will be few no's also. So how are you able to handle those no's? What do you think? For example, if you get less marks only, I see children are not Mm, able to take it nicely. I mean, mm, I have come across children, if out of 60 they score 59 also, they start crying. I have mm, witnessed those children. But mm. setbacks are a part of life, failures are a part of life. We got to take it gracefully. Yes, ma'am. So what do you think? Is there any one quality that you feel that that was not there earlier, but now it is there with you because we have, been there in that learning journey? Any one thing? मैम लाइक आपने मार्क्स का बोला तो Hmm. सिक्स सेवन्थ एट फिफ्थ फोर्थ लाइक दोज इयर्स व्हेन आई वाज नॉट इन क्लास नाइन्थ, जब हम आपसे नहीं मिले थे, तो तब इट वाज लाइक मार्क्स आने अच्छे हैं तो ठीक है, अच्छे हैं, अगर कम है तो इवन आई वाज द चाइल्ड जो रोती थी क्यों नहीं आ रहे मार्क्स। उसके बाद मेरे को नाइन्थ में भी मैं रोई हूँ कि क्यों नहीं आ रहे मार्क्स, क्यों नहीं आ रहे। लेकिन फिर मुझे टेंथ से ही रियलाइज होने लगा कि मैंने तो उतने एफर्ट्स डाले ही नहीं, और जितने डाले थे उतने मुझे मिल गए। तो अब मुझे ये होता है 11th 12th में भी अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या मैंने उतने एफर्ट्स डाले थे। अगर डाले थे तो मैं अभी जो भी है मैं थोड़ा बहुत हो जाती हूँ सैड और रो देती हूँ कि मैंने एफर्ट्स डाले हैं और मेरे मार्क्स नहीं आए हैं कुछ है। लेकिन इफ आई नो कि मैंने एफर्ट्स ही नहीं डाले थे, लाइक हमारे से ज्यादा हमें कौन ही जानता है, मुझे पता है मैंने कितना भी पढ़ा पर उतना नहीं पढ़ा कि इतना हो सके, तो तब तो फिर रोने का कुछ है ही नहीं ना। मतलब बस ये होता है कि अगली बार से हमें ध्यान देना है कि अगर ये मार्क्स कम आए, इस बार एफर्ट्स कम थे, तो अगली बार हमने एफर्ट्स और डालने हैं। तो मेरा तो इसलिए मैं उसको हैंडल कर लेती हूँ अगर मार्क्स कम होते कि अगर मेरे एफर्ट्स नहीं होते, अगर होते हैं तो फिर आ ही जाते हैं मार्क्स, कितना भी कर लो, लाइक कहीं कहाँ ही गलत होंगे। अगर आपने पूरा स्टडी कर लिया सब सही है तो फिर मार्क्स तो कटेंगे ही नहीं। अगर एफर्ट्स कम थे तभी तो मेरे को ये लगता है कि अपने एफर्ट्स देखो कि आपने कितना इनपुट डाला है, तभी तो आउटपुट आएगा। तो मैं ये सोच के फिर लेट गो करती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और ये भी सोचती हूँ कि ठीक है अब हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है और नेक्स्ट वालों का ज्यादा ध्यान देना है, तो ठीक है, मिस्टेक्स से लर्न कर लेती हूँ। ठीक है, nice. This was about exam. What about हम्म, broken friendships? If some friends are gone from your life, what do you think? That's an important part in a school life, isn't it? Even I have हम्म। friends, but now I'm not having those friends. So how are you able to handle that? What do you think? How are you able to handle that? टू बी ऑनेस्ट मेरे इतने सारे फ्रेंड्स ऐसे हो गए हैं ना, तो मेरे को पता भी नहीं मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ। क्योंकि लाइक अभी आई ओनली हैव टू फ्रेंड्स, वन इन स्कूल वन इन ट्यूशन, एंड इवन माई इज ऑल्सो इन स्कूल, स्कूल एंड ट्यूशन बोथ। सो तो बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। इन It's okay. डिफरेंट वे, इट्स जस्ट कि जब आपको आपको लगे कि आप यू आर मिसिंग देम या कुछ भी है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक मिनट लेट मी थिंक। कोई बात नहीं, it's okay. Do you think people stay in your life forever? You really ना think ना so? नो मैम, Because I नॉट feel इवन अ people सिंगल are पर्सन। because I feel people are here to teach us. They teach and then they leave. They are here for a specific time in your life. If you keep वेरी ट्रू। calculating, there are so many people. They'll keep coming, they'll keep going. And it is a part of nature. एंड Yes. मैम मैं फ्रेंड्स का वो कैसे करती हूँ, तो आई जस्ट फील कि मुझे मिलाने वाले उन लोगों से, लाइक उनसे मेरे को रिलेशन तो था ही ना, ऐसे ब्लड रिलेशन, तो मिलवाने वाले बाबा जी खुद है। अब उन्होंने दूर किया, क्या पता इसी में कुछ अच्छा हो, तो मैं ये सोच के छोड़ देती हूँ कोई भी हो। तो मैं मेरे को ये लगता है कि अगर उन्होंने तब मिलवाया था और वो चाहते हैं कि मैं अभी भी उनसे मिलूं उनसे बात करूं, तो वो फिर मिलवा देंगे। तो ये तो मेरा गॉड के हैंड में है, वो खुद कर लेंगे। उसमें मैं सोचती नहीं कि ठीक है अभी जो है, थोड़ा लाइक पेन तो होता ही है, और
रोते भी हैं, फील भी होता है काफी ज्यादा, वो दोबारा आपको दिखेंगे सामने। फिर जब उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं तो थोड़ा सा जेलस हो जाता है कि ओ वी वर एट द सेम प्लेस फ्यू मंथ्स बैक, फ्यू इयर्स बैक। बाकी हो जाता है, लाइक आपको लगने लगता है कि ठीक है उसी में ही कुछ अच्छा है मेरे लिए, अगर उन्होंने किया तो अच्छा ही होगा इसमें तो स्पेशली तो। I have also seen you being very spiritual. Does it help? Does it help? यस, इट हेल्प मी अ लॉट, इट हेल्प मी अ लॉट। लाइक जब भी मेरा ऐसा होता है ना, एग्जाम डेज होते हैं, तो पीपल आर लाइक कि 24/7 जस्ट स्टडिंग स्टडिंग नॉट गोइंग एनीवेयर। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना हाफ आवर 1 आवर निकाल के गुरुद्वारे जाऊं, मत्था टेक के आऊं, मंदिर जाऊं, घर पे पूजा करूं। तो वो चीज तो है, लाइक मैं बोर्ड के एग्जाम्स में भी जब भी, लाइक उसमें होता ही है कि हम सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, तो फिर तब की उठ गए हैं तो पूजा कर लेते हैं, गुरुद्वारे मत्था टेक आते हैं, रात को लेट सोना है तो गुरुद्वारे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं ये नहीं देखती कि इवन मेरा कल भी अगर एग्जाम होता है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स, बोर्ड्स में थोड़ा सा हो जाता है प्रेशराइज, बट अगर नॉर्मल एग्जाम होता है लाइक नेक्स्ट डे है, तो रात को भी अगर मम्मा वगैरह गुरुद्वारे जा रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ शायद, विदाउट थिंकिंग कि मेरा हाफ आवर जा रहा है, 1 आवर जा रहा है। आई जस्ट बिलीव कि ठीक है, वो है तो सब है मेरे लिए, तो इट्स लाइक दैट सो। Beautiful, so beautiful. I feel every child should learn this from you, definitely. That it's important to be spiritual. Spiritual means being connected to whichever God you believe in, just the names are different. You got हम्म to be connected to that energy, and I feel everything is being taken care of if we remember this. And definitely. very important, you have almost spent your most of the journey in school life. You're almost about to end the school journey. What do you Yes, think schools should teach apart from teaching subjects? आई फील कि वो जो हमारा एक वैल्यू एजुकेशन का पीरियड होता है ना, एटलीस्ट वो पीरियड हमें अच्छे से वीक में ट्वाइस आई थिंक मिल सके, जिसमें हम सिर्फ ये ना डिस्कस करूं कि फ्यूचर में आपको कहाँ पे अर्निंग करनी है, फ्यूचर में कहाँ पे स्टडीज आपकी काम आएंगी। इंस्टेड हमें ये समझाया जाए कि फ्यूचर में आपने कैसे अपनी इन सिचुएशन को बीट करना है, कैसे इनसे बाहर निकलना है, इन द केस ऑफ रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, एंड यू नो नॉर्मल ह्यूमैनिटी आई शुड से। तो ये चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है स्कूल में, कि मतलब मैंने तो देखा है ना कि हमारी लाइक उससे पहले 9-10 से पहले, 9-10 के बाद, कि द ओनली थिंग ईच एंड एवरी वन इज रनिंग बिहाइंड इन स्कूल इज मार्क्स, दैट सर्कल विथ टू थिंग्स, fraction is the only thing each and every person is running for. लाइक अभी भी वी जस्ट गॉट टू नो कि आपको पता ही है आपकी स्टडीज कहाँ काम आएगी, इसके बाद आपकी लाइफ और ऐसी हो जाएगी। लाइफ कैसे होएगी कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको इधर जाके उधर जाके 3-4 जगह पे ट्राई करना पड़ेगा, यहाँ काम करो वहाँ करो, और बहुत मुश्किल हो जाएगी लाइफ, ये चीज। बट हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो उससे कैसे डील करो। Wow. ये होता है कि स्ट्रेस मिलेगा, उससे डील कैसे करना है वो आप खुद फाइंड करो घर जाके। तो ये चीज मुझे लगता है कि होनी चाहिए। जो हमारे 9-10 के सेशंस होते थे ना, जिसमें आप हमें बताते थे कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट द क्लास, इट्स अबाउट द पीपल वी आर हेयर, लाइक 14 ईयर्स ऑलमोस्ट अगर नर्सरी से 12th तक देखा जाए, तो एक इंसान स्पेंड करता है, और उसके बाद भी अगर हम गुड रिलेशंस लेके वहां से नहीं जा रहे, तो फिर उन गुड मार्क्स का आई डोंट थिंक उतना यू नो रहता है कि हाँ देखो इतने अच्छे मार्क्स आए। बट स्टिल मैं यहाँ पे किसी से बोलती नहीं थी। टीचर्स मुझे जानती हैं कि इसके मार्क्स अच्छे जाते थे, इसलिए नहीं कि मैं टीचर से अच्छे से रहती थी या मेरा नेचर अच्छा था। तो ये चीज होनी चाहिए कि हर एक बच्चे को ना ये बताना, मतलब स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करना चाहिए कि आप अपनी डेली लाइफ पे कैसे रहेंगे, और मार्क्स के अलावा और मनी के अलावा आप कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे। मतलब आई नो दे आर इम्पोर्टेंट बट नॉट ओनली दे आर इम्पोर्टेंट, बाकी चीजें भी हैं लाइफ में करने को, तो वो भी होनी चाहिए। तो ये वाली Wow. मेन चीज इम्पोर्टेंट। Wow. I mean, I'm speechless with the kind of answers and with the kind of things that you're sharing because it's really raw and it's really real. There's nothing, everything is coming from the heart directly. So really loved it. And do you think the kind of space that I'm trying to create, Roots and Wings, for these kids, the kind of help that they're not getting in school, will it be helpful for them?
What do you think? Because I cannot Mm. cater, I can only cater one class at a time in school, Hmm. but I want to cater like millions of students. So do you think it's going to be really helpful for them apart from their school academic studies? Yes, ma'am, definitely. It will be very helpful. Like, I had seen myself, I am promoting something that I had already, used, you can say. So, yeah, definitely, it will help them a lot. क्योंकि मैंने खुद को देखा है कि मैं कैसे उस टाइम पे फील करती थी, कैसे उस टाइम पे सैड रहती थी, काइंड ऑफ. And now, even if I don't have many friends at school, still I am like, okay, let's chill with each and every person. It's okay if I'm going and, talking to them a bit once in a day or once in 2 days, 3 days, that's okay. But हाँ, ये चीज है और मेरे को अभी ये समझ आ रहा है कि कैसे कुछ चीजें थी जहाँ पे मैं नहीं कोप अप कर पाती थी, तो अब मुझे समझ आ रहा है उनसे कैसे करना, कोप अप करना है. तो ये तो मतलब होना ही चाहिए. स्कूल्स में अगर नहीं हो रहा है तो थैंक्स टू यू कि आप उसको अलग से कर रहे हैं. डेफिनेटली आफ्टर 12th जितना भी हो पाया आई एम गोना प्रमोट इट. और वेन एवर आई फाइंड समवन आई गोना सजेस्ट देम to almost each and every person, like my relatives and all. I'm definitely gonna suggest them कि एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए लाइफ में. आप कितना भी उनको स्कूल भेज लो, कितना भी स्टडीज पे फोकस, ट्यूशंस और स्कूल्स भी तो हम जाते ही है ना. एक और एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल, डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल. Thank you so much. Thank you. Thank you. Coming directly from a student matters a lot. Just to understand what's really going behind the students and what they go through, that nobody really notices, I feel. So it's very important to, just understand that as well. Uh, I've seen you growing a lot. So one last question before we end this. What do you want to do in future? I don't want to know what you want to become. I don't expect that answers from you. What do you want to become you? But how do you really see yourself in future being my student? स्पेशली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में किसी को जज नहीं करूंगी, स्पेशली ऑन दी मार्क्स जो कि मैं हुई हूँ. तो वो जो फीलिंग होती है वो तो मैं किसी को नहीं देना चाहूंगी कि कोई भी हो लाइफ में. इवन अभी भी मेरे को होता है कि आने वाले 2 साल बाद, 4 साल बाद, इवन मेरे फ्रेंड्स जो होंगे, अगर वो एक कॉलेज में है, मैं दूसरे में हूँ, डेफिनेटली कोई मेरे से बहुत आगे होगा, कोई मेरे साथ होगा, कोई मेरे से जरा पीछे होगा. तो उस चीज पे तो मैंने जज नहीं करना है. सेकेंडली आई थिंक कि ये जो काइंड ऑफ नेचर मेरा है, सबसे थोड़ा ज्यादा अटैच हो जाना या प्यार से बोलना. सबसे नहीं, सबसे नहीं, आई एम नॉट गोना से सबसे, बिकॉज द सोसाइटी राइट नाउ इज नॉट टू बी लाइक दैट विथ each and every person. But yeah, I think I'll be a bit different from those, लाइक जिनके साथ भी मैं आगे जाने वाली हूँ, जितने भी मेरे कॉलेज में होंगे या जॉब लाइफ में होंगे, वर्क लाइफ में होंगे. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो मेरे को उसमें डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि वो मैंने अभी भी देखा है. मैंने आपको बताया था स्कूल में कि वो मैंने अभी भी देखा है. डिफरेंस तो वो होगा एक तो. सेकेंडली, थर्डली, हेल्पफुल तो मैं होंगी, तब भी हेल्पफुल तो मैं होंगी. और और बस मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग ऐसे रहता है. इंस्पायर तो काश कर पाऊं. आई होप एंड आई विश कि कुछ ऐसा हो लाइफ में आगे, इन माय वर्क लाइफ ऑल्सो, इन माय डेली लाइफ ऑल्सो, कि मैं इंस्पायर कर पाऊं आपकी तरह, जैसे आप हमें करते हैं. तो यही बस. क्या. Wow. Wow. अच्छा. Aiming to be an inspiration and doing that kind of work is actually God's work. And I expect the same, I hope that all my students do the God's work actually. And eventually, yes, of course, you will be an inspiration. I have no doubt about that. थैंक यू मैम. Thank you so much for being here थैंक यू. and opening your heart out. To everybody watching this video, I seriously wish for all the parents to see their children for who they are becoming instead of what they are achieving. This is what I wish for all the parents. And thank you so much for being here. It थैंक was यू मैम. lovely to have this conversation with you. So I will just end this.